Good afternoon, class. Now we are going to discuss exercise that is 13.5 and 13.6 today. Till now we are discussing about the surface area of different type of 3D figures. We can may say sphere, cone, cylinder, or we can say cuboid, cube. Now we are going to discuss in these exercises about volume of different figures. Firstly, we are going to discuss volume of cube. Okay, as we know, cube have all the dimensions equal, all the three dimensions are equal. That's why means length is equal to breadth is equal to height, means we can say A and A, all the sides are equal. That's why one side is equal to A, means volume is equal to length breadth. Always the volume is equal to what? Length into breadth into height. Then here length is also A and breadth is also A and height is also A. That's why volume of cube is A cube. A cube. Okay, now we have to understand that what is volume. What is volume? For that we have to see a figure. Wait for a while. I can tell you something about a figure. You may look this box. Okay. Previously we have discussed about the surfaces area of this box. Now we are going to discuss the space that is occupied in terms of volume by this box, means how much area is present inside the box, that we are going to discuss in this given exercise, means volume. So different type of, we are going to discuss volume of different type of figure. Firstly we are going to discuss about cube. Then in the first exercise only we will discuss about the volume of cuboid. So volume of cuboid, that is, we know that the three dimensions are unequal, means they are different. So we have three dimensions, that is L, B and H. Okay, then the volume is equal to length into breadth into height. That is our volume. Okay, we know that the unit is per unit cube. Unit cube is the unit cube. As we know that in the surface area we are saying unit cube means centimeter square, or we can say meter square. Now we are going to say unit cube. मीन्स अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर लिखा हुआ है तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये यही डिस्कशन, एक सिंपल डिस्कशन हम देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें हम वॉल्यूम निकालेंगे, चाहे क्यूब का हो चाहे क्यूबॉइड का हो. आइए देखिए, चलिए डिस्कस करते हैं और समझते हैं, फटाफट अंदाज में इसको जानने की कोशिश करते हैं कैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं पहली एक्सरसाइज 13.5 में और उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे. आइए देखते हैं फटाफट बिना किसी देरी के. तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ है कि all the walls of length 10 meter walls being built across the open garden, the height of the wall is 4 meter and the thickness of the wall is 24 centimeter. If the wall is built up with the bricks whose dimension is 24 centimeter into 12 centimeter into 8 centimeter, how many bricks would be required? अभी से क्या कह रहा है, सीधी सीधी बात है कि हमें कह रहा है कि एक क्या करना है, एक दीवार बनानी, एक गार्डन है, एक पर्टिकुलर कोई भी गार्डन है, उसके चारों तरफ इर्द गिर्द क्या है, दीवार बनानी है. दीवार बनानी है तो दीवार की लेंथ क्या दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है,
लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर, कितना दिया है 10 मीटर, ठीक है। और ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है आपका 24 सेंटीमीटर, कितना 24 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 24 सेंटीमीटर है। और हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया है 4 मीटर। देखिए अगर ये मान लेते हैं कि दीवार का वॉल्यूम है, तो सीधी सी बात है जो ईंटें हैं उसी दीवार के अंदर ही तो रहेंगे। तो हम ये मान लीजिए एक छोटा सा ईंटा है ये, तो कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर लगेंगे कि इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को फिलअप कर लें। तो मीन्स क्या है कि अगर हम दीवार का एरिया निकाल लें और हमें ब्रिक्स का एरिया निकाल लें और दोनों को डिवाइड कर दे, तो मीन्स पता चल जाएगा नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक that much length of wall, or we can say how much bricks are needed to cover up that much of volume. Now we are going to see, let's see, so volume of the wall is equal to हो जाएगा कितना। पहली चीज एक बार याद रखिए, ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये मीटर में है, ये मीटर में है, मीन्स आपको एक यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। जिसको चेंज करेंगे मीटर सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 10 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, कितना 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसको करेंगे कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 इंटू 1000 इंटू 24, ठीक है। अभी इसको सॉल्व में करिए। सॉल्व करने में क्या है कि आप सीधी सीधी बात है सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने में जो भी आप सॉल्यूशन करेंगे बहुत बड़ा आएगा, फिर बाद में डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अभी तो वॉल्यूम निकल आया ऑफ द वॉल। अब वॉल्यूम निकालते हैं किसका, ब्रिक का। तो ब्रिक का क्या दिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 24 इंटू 12 इंटू 18। चलिए कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, एरिया ऑफ ये क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ क्या दिया है, वॉल दिया है, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 24 इंटू 12 इंटू 18। अब जो है नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा 400 इंटू 1000 इंटू 24 अपॉन 24 इंटू 12 इंटू 18। ओके, 24 और 24 कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे लगभग आंसर क्या आ जाएगा 4166.6, ठीक है, 4166.6 ब्रिक्स आ जाएगी। तो सीधी सी बात है, किसी भी भट्टे पे आप जाएंगे ईंटें खरीदने तो कहोगे 0.6 ईंटा दे दीजिए, वो नहीं देगा। तो सीधी बात है इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे कितना ईंटा लगेगा 4167 ब्रिक्स अप्रॉक्स लगेगा, मींस इतनी ईंटें लगेंगी। उसके बाद क्या है आपका दीवार पूरी तरह से बन जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो आपने एक एग्जांपल देख लिया किसका, क्यूबॉइड का, ठीक है। देखते हैं अगर कोई एक क्यूब का एग्जांपल दिया हो, ठीक है। चलिए दिया हुआ है, आइए उसको भी देख लेते हैं फटाफट। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे, फॉर्मूला देखेंगे और साथ ही साथ उसे आप सॉल्व भी करिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि a child playing with building blocks which are the shape of cube has built a structure shown in edge of 3 centimeter. Find the volume that the structure was built. ठीक है। अब कह रहे हैं कि एक चाइल्ड है, एक लड़का है जो कि क्यूब्स के साथ क्या कर रहा है, खेल रहा है, ठीक है। बिल्डिंग
जो ब्लॉक्स होते हैं वो इसके पास क्यूब शेप के हैं, उससे खेल रहा है, जिसमें उसने नंबर ऑफ क्यूब्स कितने इस्तेमाल किए, नंबर ऑफ क्यूब्स उसने एक बिल्डिंग बनाने में कितना स्टार्ट किया है, इस्तेमाल किया है 15, कितना, आई थिंक तो हाँ 15। और जो है एज या फिर हम कहें एक साइड जो है उसकी लेंथ है क्यूब की क्या है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोला क्या गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग। तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है यूज किए गए बिल्डिंग 15 है, एक का एज 3 सेंटीमीटर है, तो पहले एक क्यूब का निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन 3 3 या 9 3 या 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ 15 क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 27 इंटू 15, ठीक है। 15 हो जाएगा 105, 15 7 105 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 5 यहाँ, ये 10 यहाँ, 15 to 30 देन 405 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं किसके वॉल्यूम के बारे में, सिलेंडर के वॉल्यूम के बारे में। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए आप इसे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं फटाफट, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज 13.6। और हमारा पहले चीज हमें याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, आर जो है आपका रेडियस है और एच क्या है, हाइट है, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आइए देखते हैं इनके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आपने फॉर्मूला देख लिया, ये क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं कि द पिलर ऑफ द टेंपल आर सिलेंड्रिकली शेप्ड, इन ईच पिलर हैज अ सर्कुलर रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। हाउ मच कॉन्क्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर्स, ठीक है। तो कहते हैं सीधी सी बात है कि 4 पिलर हैं, तो मंदिर मान लिया ऐसे कुछ है, शेप्ड है, तो एक पिलर ये हो गया, एक पिलर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये होगा। सभी पिलर का जो है रेडियस क्या दिया हुआ है, सभी पिलर्स का 20 सेंटीमीटर, मींस रेडियस कितना हो गया, रेडियस 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हाइट है उसकी 10 मीटर, हाइट है 10 मीटर, सॉरी हाँ 10 मीटर। आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर इंटू 100 क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक हाइट का लेंथ मिल गया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला, हमें पता है क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है, तो सॉल्व करिए। पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मीन्स क्या, रेडियस का स्क्वायर 20 इंटू 20, और एच जो है हमारा 1000 सेंटीमीटर। अब सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आपको क्या है, ये मिल जाएगा 88 4 टाइम्स 0, 88 4 टाइम्स 0 अपॉन 7। मैं डायरेक्टली आंसर इसका बता दे रहा हूँ, बट आप इसको सॉल्व करोगे इतने सेंटीमीटर क्यूब आपका जो है वॉल्यूम निकल आएगा। किसका, इन सभी चारों पिलर्स का वॉल्यूम निकल आया, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि लगभग 1000 इंटू 1000, ठीक है, 1000 इंटू 1000, 1000 इंटू 1000 मीन्स अगर हमें मीटर में चेंज करना, मीटर क्यूब में चेंज करना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना होगा। इतने समय क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 8.8 अपॉन 7 मीटर क्यूब।
ये आपको जो है एग्जाम क्या है इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब 14 पिलर, एक पिलर का जो है कितना दे दिया गया 8.8/7 दे दिया गया, एक पिलर का ये वॉल्यूम है। तो 14 सच पिलर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 हो जाएगा, 7 2 जो 14 हो गया तो हो जाएगा 8 2 जो 16 1 यहाँ 8 2 जो 16 1 17 17.6 हो जाएगा। ठीक है, 17.6 मीटर क्यूब, नॉट सेंटीमीटर क्यूब। इन जो 14 पिलर्स है, सॉरी 4 पिलर मैंने बोला था, 14 पिलर है उसमें कितना 17.6 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट का जो मिक्सचर लगेगा, तब जाके वो पिलर्स बन पाएंगे, वो फिलअप हो पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आपसे वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसके सिलेंडर के। जहां कहीं पे भी आपको डाउट है वो पूछिएगा। डाउट्स किसी के आ रही है, मैंने पहले से अनाउंस करके रखा हुआ है कि आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी टाइप ऑफ डाउट इन दीपावली हॉलीडेज। ओके, तो मैंने बता रखा है कोई भी डाउट एक्सपेक्ट भी मत करना कि डाउट के आंसर्स मिलेंगे दीपावली के समय। बट नाउअडेज मैंने बोला है कि आप डाउट पूछ सकते हो, बट आ नहीं रहे। होपफुली आप लोग सॉल्व कर पा रहे होगे, इसलिए डाउट नहीं आ रहे, अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज पूछो, और क्योंकि आपका ही नुकसान है, इसमें हमारा नुकसान कोई भी नहीं होने वाला है। और होपफुली आप सॉल्व करोगे, दोनों एक्सरसाइज करिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा इसका जो है वो 13.7 और 13.8 के ऊपर होगा, और फाइनली उसी के साथ चैप्टर ओवर हो जाएगा। आपके स्कूल के हाफ ईयरली पेपर के हिसाब से भी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर वी विल डिस्कस मैथ। होपफुली अगर अच्छा रहा सब कुछ तो ऑफलाइन, और नहीं अच्छा रहा तो ऑनलाइन। फिर जैसे मिलते हैं वैसे मिलेंगे ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।